Very good morning, class 8. So, yesterday I gave you this passage for reading, and I told you to read this passage and find out the answers. So, have you done that? So, first of all, we will read this poem, this passage, and we will find out the answers. According to C.M. Jode, the important factors that constitute civilization are making beautiful things, thinking freely, thinking new things, and keeping rules without which people cannot get on together. The first of these could be identified as the arts, music, literature, painting, the second one, science, philosophy, and the third, political justice and ethics. The CM Jode spoke about civilization living in a well educated English society. The question here is how far have the standards that Jode recommends to get civilized been achieved? So, how far do we exceed in creating beauty, thinking new things, and keeping rules? What are our recent discoveries and inventions that will help assuage the hardships of the poor and the distressed? So, our history has been glorified by many geniuses who have been contributed to civilization. But history becomes as frivolous as a story when no longer bother about it. So, living in a competitive world, we have no time for free thinking. We are too busy to think at all. So we use our brain mechanically to secure a first rank in examinations. Science and technology are monarchs. They order, we rush and charge. Science and technology have made our material lives easy and comfortable, but beyond this, we have a moral life which seems to be dull, dreary, and monotonous. So E.M. Foster asserts that tolerance, good temper, and sympathy are what matter really. And if human race is not to collapse, they must come to front before long. So in this, they are talking about the important factors that constitute that what is civilization, what points we should keep in mind if we want to be called as civilized. So according to CM Jode, beautiful things, thinking freely and thinking new things, and keeping rules without which people cannot get on together, he thinks according to him all these factors constitute civilization. So first of these could be identified as the like when I said that beautiful thinking, that means beautiful things means it is related to the arts, music, literature, painting. That's all. So the second one is thinking freely means it means science and philosophy, and the third one, thinking new things, means political justice and ethics. It is related to that. So, C.E.M. Jode says that he spoke about the civilization living in a well educated English society. Now the question is how far we have the standards which the Jode has recommended, has those standards have been achieved. So how far do we succeed in creating beautiful things or thinking new things or keeping our rules? So how much we take care about? I don't think that we take care about all these things. So what are our recent discoveries and inventions are, and that will help assuage. Assuage means to make an unpleasant feeling less strong, means to lessen the thing, to help lessen the hardships of the poor और distress. हमने कितना किया है, क्या डिस्कवरीज की हैं हमने, या क्या इन्वेंशंस की हैं जिससे कि गरीब लोगों की गरीबी या उनका दुख दर्द दूर हुआ हो. देन हमारे कितने जीनियस रहे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हमारी सिविलाइजेशन में. बट हिस्ट्री क्या है, वो फ्रिवलेस बन जाती है एज अ स्टोरी व्हेन वी नो लॉन्गर बॉदर अबाउट इट. हिस्ट्री भी अनइम्पॉर्टेंट. फ्रिवलेस मीन्स नॉट सीरियस. व्हेन वी इट बिकम्स वेरी फ्रिवलेस मीन्स इट बिकम्स अ वेरी नॉन सीरियस मैटर if we don't bother about it. सो लिविंग इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वी हैव नो टाइम फॉर थिंकिंग. तो ऐसा क्या है, आजकल क्या हो गया कि हम लोग इतने फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में चल रहे हैं, जी रहे हैं, दैट वी हैव स्टॉप थिंकिंग. वी आर टू बिजी to think at all. We don't have time to think. We are just working mechanically. What he means to say. So we use our brain mechanically only to get the first ranks in the examinations. हम लोगों को जब कोई एग्ज़ाम पास करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को मैकेनिकली यूज़ करते हैं कि हमें अच्छे रैंक्स मिल जाते हैं. और आज की डेट में साइंस और टेक्नोलॉजी क्या, हमारे मोनार्क्स मीन्स हमारे रूलर बन गए हैं. दे आर रूलिंग अस. वी रश, दे ऑर्डर, वी रश. क्या है, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, साइंस से रिलेटेड हो गया है. तो वो जैसा हमें ऑर्डर किया जाता है हम रश करते हैं और चार्ज हो जाते हैं. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड आर मटेरियल लाइफ्स ईजी एंड कंफर्टेबल.
डेफिनेटली कितनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गई हैं, उससे जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल तो हो ही गई है। बट बियॉन्ड दिस वी हैव अ मॉरल लाइफ विच सीम्स टू बी डल, ड्रेरी एंड मोनोटनस। बट अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो जो हमारी मॉरल लाइफ है, जो हमारे मॉरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों में भी ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। क्यों आज का बच्चा इतना अपने टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है? क्यों है? क्योंकि विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द मॉरल वैल्यूज़ आर डिक्रीजिंग। पेरेंट्स के पास ना तो टाइम है बच्चों को ये समझाने के लिए कि हमें कैसे बड़ों से बिहेव करना है, ना ही बच्चे आज की डेट में इतना सुनते हैं। दे डोंट वांट टू सिट विद देयर पेरेंट्स, दे डोंट हैव टाइम टू सिट एंड टॉक टू देयर पेरेंट्स, एंड इवन द पेरेंट्स डोंट हैव द टाइम बिकॉज बोथ आर वर्किंग और बिजी इन देयर वर्क. So the science and technology has just I will say that this is the minus point of science and technology, that no doubt it has made our material lives very easy and comfortable, but on the other hand they have made our moral life very dull, dreary and monotonous. Monotonous means very dull. एक ही चीज़ जो बार बार होती रहे उसको monotonous बोलते हैं. So E.M. Foster asserts that tolerance, good temper and sympathy, ये जो 3 क्वालिटीज़ हैं हम में ज़रूर होनी चाहिए. टॉलरेंस ज़रूर होनी चाहिए जो आजकल बिल्कुल कम होती गई जा रही है. गुड टेम्पर, आजकल किसी का भी टेम्पर अच्छा नहीं रहा है. सब थोड़ी सी छोटी सी बात पे हम लोग आजकल गुस्सा हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, जो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो होनी चाहिए. एंड द थर्ड इज़ सिंपैथी. आजकल आज की डेट में हम एक दूसरे के लिए कोई सिंपैथी नहीं रखते. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन आवर वेस्टेड इंटरेस्ट. जो चीज़ हमसे मीन्स जो चीज़ हमसे रिलेटेड है बस हम उसी में इंटरेस्टेड हैं. जिस चीज़ से हमें फ़ायदा है हम उसी से रिलेटेड हैं. हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है. वी हैव बिकम वेरी प्रोफेशनल. सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. आर वॉट रियली मैटर, क्या मैटर करता है? टॉलरेंस, गुड टेम्पर एंड सिंपैथी. एंड इफ़ द ह्यूमन रेस इज़ नॉट टू कोलैप्स दे मस्ट कम टू द फ्रंट बिफोर लॉन्ग. और अगर ह्यूमन रेस चाहती है कि वो सर्वाइव करती रहे लंबा, तो उनको आगे आना पड़ेगा ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ. अदरवाइज़ अगर वो भी रोबोट्स की तरह बन गए तो जो हमारी ह्यूमन रेस है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी. Now we'll come to the question answer part. Bring out the 3 categories under which C.M. Joad classified civilization. So in the first paragraph, we will get the answer where he says that important factors that constitute civilization are beautiful things, thinking freely and thinking new things. These are the 3 categories under which the C.M. Joad classified the civilization. How has the thinking almost disappeared in today's world? Yes, thinking has disappeared in today's world because we are living in a very competitive world and we have no time for free thinking. We are too busy to think at all, and to just get the good marks in the exams we are just using our brain mechanically. So this is the, and we are just the servants of science and technology. So this is the answer of the second question. History loses its importance when we no longer bother about it. Students manage to secure first rank by using their brain mechanically. Their brain आएगा, R नहीं आएगा यहाँ पे. Using their brain mechanically. Due to science and technology, our life has become very easy and comfortable. इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं. Become easy and comfortable. Okay. It is important for human beings to possess tolerance, good temper and sympathy because they are the true virtues. यही अच्छी क्वालिटीज़ हैं, यही सच्ची क्वालिटीज़ हैं, यही मॉरल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पास होनी चाहिए. Now with this we have completed this comprehension. If you feel like you can write it in your notebooks, I don't bother. आप लिख सकते हैं क्योंकि ये comprehension अच्छी है, टॉपिक भी अच्छा है, तो you can write it in your notebooks. आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक्स में. Yes. So now we come to the section 3 of this unit, that is everything runs on the wheels. So everything runs on the wheels. That means this chapter is related to the wheel, the invention of wheel. As you all know that with the evolution of man was used to live a very rough life. जब इन धरती पे हमारा इंसान जो आया, एवोल्यूशन हुई है, तो किस तरह का था? इट वॉज जस्ट लाइक एन अर्ली मैन, राइट? सो धीरे धीरे उसने हर काम करना मीन्स धीरे धीरे ही स्टार्टेड टू थिंक एंड इन्वेंट थिंग्स, लिटिल थिंग्स, एंड स्लोली एंड
slowly, gradually he discovered new things, and आज आपके सामने हम लोग how technically and scientifically we are advanced today. So today we are going to read about everything runs on the wheels. So let's read that what is written in this lesson. So can you imagine a world without wheels? आप कभी इमेजिन कर सकते हैं? सोच के देखिए, अगर व्हील्स ना हों तो क्या होगा? Close your eyes and try to imagine that what such world would be like, जहाँ पे ना कोई बाइसिकल, नो मोटरसाइकिल्स, ना कार्स, ना बसेस एंड ऑन द रोड. सोच के देखिए, आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं है. If there were any roads, no tractors, no trains, no aeroplanes, there would be no machines of any sort. व्हील ही रन कर रहा है सब कुछ बच्चे, चाहे वो मशीन्स हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हैं, कोई भी जो चीज़ें हैं वो सब व्हील से चल रही हैं. दे आर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय द व्हील्स. सो नो क्लॉक्स, नो वॉचेस, बिकॉज द इनसाइड ऑफ द वॉच इज़ फुल ऑफ व्हील्स. लॉट ऑफ मिस्टेक्स आर देयर इन दिस लेसन, स्पेलिंग मिस्टेक्स. क्योंकि जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हमारे व्हीकल्स हैं वही चल रहे हैं. जो हमारा व्हील है वो बहुत चीज़ों को चला रहा है. एक तो व्हीकल्स हैं सारे हमारे, दूसरा हमारे जो मशीन्स हैं वो सारे व्हील से चलते हैं. क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, वॉचेस के अंदर देखा आपने व्हील्स ही घूमते रहते हैं. एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, एवरी थिंग रिवॉल्व्स अराउंड द व्हील. सो इनफैक्ट देयर वुड बी वेरी नियरली नथिंग लेफ्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट टुडे. तो अगर हम सोचें कि व्हील ना हो तो फिर आप सोच के देखिए कि आज की डेट में तो फिर कुछ नहीं होता अगर व्हील ना होता. आज हम जिस स्टेज पे हैं, जिस एडवांसमेंट में हैं, तो जस्ट इमेजिन इफ देयर वुड हैव बीन नो व्हील, सो व्हाट वुड हैव हैपेंड. वी यूज्ड टू लिव लाइक एन अर्ली मैन. So we would be back in the days long ago when people stayed in their own little village and all their lives because traveling was difficult and dangerous. Yes, हम लोग बिल्कुल अर्ली मैन की तरह ही होते, अपने घरों में ही रहते, छोटी सी विलेज में रहते, क्योंकि उस वक्त ट्रैवलिंग तो इतनी डिफ़िकल्ट थी और डेंजरस भी थी. सो पीपल देन हैड अ वेरी लिटिल टू ईट एंड लिटिल टू वियर. डेफिनेटली कोई एडवांसमेंट नहीं थी. एंड इवन लाइफ इटसेल्फ वाज डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द सिकनेस. कैन यू इमेजिन सच अ वर्ल्ड? क्या आप सोच सकते हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही पीछे एंशियंट में चले गए हैं, अर्ली डेज़ में चले गए हैं, जब मैन जो है अर्थ पे आया था और उसकी वो कैसी हार्डशिप से भरी हुई लाइफ थी. कैन यू इमेजिन दैट वर्ल्ड? नाउ डेज वी आर लीडिंग अ वेरी ईजी एंड कम्फर्टेबल लाइफ. सो कैन यू इमेजिन दैट लाइफ? इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. यू कांट जस्ट इमेजिन. So nobody knows who invented the first wheel. It happened so long ago. Most probably the invention of the wheel was not the work of one man only. So as we all know that nobody knows that who invented the wheel. It happened very long ago. Most probably the invention of the wheel was not only the work of one man. एक आदमी तो बना नहीं सकता, invent नहीं कर सकता wheel को, ठीक है ना. तो men tried one thing after another to make their work easier. तो ये जो एडवांसमेंट हुई है बच्चे, ये एक दिन की बात नहीं होती है. मैन जब धरती पे आया उसने छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कवर करना शुरू किया, ठीक है. ही ट्राइड वन थिंग, जैसे ही डिस्कवर्ड फायर, है ना. उसने कैसे डिस्कवर की थी फायर? उसने जो दो पत्थर वो रगड़ रहा था, ठीक है ना. तो बाय ट्रायल इसे कहते हैं. जो कुछ चीज़ें तो उसने बाय ट्रायल सीख ली. अब वो रगड़ रहा था, धीरे धीरे रगड़ता रहा, तो उसने हिट भी किया रॉक को. तो एक बार, दो बार, तीसरी बार स्पार्क निकली, तो उसको पता चला कि ऐसे स्पार्क निकलती है और ऐसे इससे चीज़ जलती है. तो ऐसे ऐसे करके एक एक चीज़ को उन्होंने डिस्कवर करना शुरू कर दिया. He tried one thing after another to make their life easier. And the idea of wheel slowly grew from the collective thoughts. और ऐसे ही जो व्हील का आइडिया था वो भी कलेक्टिव थॉट्स थे बहुत सारे लोगों के. कोई एक इंसान की सोच तो ये हो नहीं सकती. And the idea of wheel slowly grew from the collective thoughts of many men. 5,000 years ago, when the pharaohs of ancient, this is ancient not accident, इन्होंने गलत लिखा हुआ है. अब ये they are talking about 5,000 years ago की बात कर रहे हैं, जब फेराज ऑफ एंशियंट इजिप्ट. फेराज होते हैं बच्चे इजिप्ट में, इनको रूलर बोला जाता था. एंशियंट इजिप्ट में इनको रूलर मींस किंग, मोनार्क. तो ये फेराज जो थे वहाँ के रूलर्स थे. जब उन्होंने सोचा इजिप्ट पर बिल्डिंग द वंडरफुल पिरामिड्स. तो आपको पता है ना, इजिप्ट इज़ नोन फॉर द पिरामिड्स जो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होते हैं ना.
पिरामिड्स आपने देखे होंगे जो इस शेप में होते हैं, देखे होंगे ना आपने, इजिप्ट में तो बने हुए हैं ये सब। तो ये सब जो पिरामिड्स थे उस वक्त, वो जो एंशिएंट इजिप्ट थे, ये वो बनाते थे, पिरामिड्स बनाते थे उस वक्त। ये दे वर बिल्डिंग देयर पिरामिड्स एंड पैलेसेस बिसाइड द रिवर नाइल। नाइल आपको रिवर पता है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सो दे वर बिल्डिंग देयर पिरामिड्स एंड द पैलेसेस मीन्स बहुत बड़े बड़े महल, फोर्ट्स बना रहे थे अलॉन्ग द beside the river Nile, and they had to find ways of moving great blocks of stones which were used. And जब आप कुछ बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारा हैवी मटेरियल जो है रिक्वायर होता है। तो उस वक्त उनको अब वहाँ तक ले जाने के लिए, मीन्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए था कि कैसे इतने बड़े बड़े स्टोन्स को वो लेकर जाएं, एंड विच वर एक्सट्रीमली हैवी, बहुत हैवी थे वो। तो समटाइम्स these massive blocks of stones were carried on the wooden sledges. तो उस वक्त जो है ना, ये जो हैवी मटेरियल था, इनको स्लेजेस पे लेके जाते थे। अब स्लेजेस क्या होते हैं बच्चे? स्लेजेस होता है एक व्हीकल है जिसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स लगी होती हैं वुड की इंस्टेड ऑफ व्हील्स। वो स्लाइड करता है along the ground when pulled। नीचे छोटी छोटी स्ट्रिप्स लगी होती हैं, थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड, तो और ऊपर एक फ्लैट वो होता है पीस, तो उसके ऊपर वो हैवी चीज़ रख देते हैं और उसको ऐसे स्लाइड करते हैं तो वो रोल होके चीज़ को आगे ले जाता है। तो उस वक्त वो लोग ये स्लेजेस यूज़ करते थे मैसिव ब्लॉक्स के स्टोन्स को मूव करने के लिए। समटाइम्स दे वर रोल्ड अलॉन्ग ओवर थिक राउंड ट्रंक्स ऑफ ट्रीज़। और कई बार क्या होता था, उनको जैसे ट्रीज़ के ट्रंक्स होते हैं ना, तने, उनको काट लेते थे और उनके ऊपर उनको रोल करके ऐसे, जैसे ये है ट्रंक आपका, तो उसके ऊपर उसको रख के ऐसे रोल करके सामान को वो मूव करते थे। समझ गए आप मेरी बात? इसको आप ट्रंक बना लीजिए ट्री का, एंड ऐसे ही 2-3 ट्रंक्स और ऐसे रख लीजिए। सपोज जैसे ये ट्रंक्स ले लिए उन्होंने और इसके ऊपर ऐसे सामान को ऐसे ऐसे करके रोल करके, वो ऐसे रोल करके आगे सामान को ले जाते थे। तो दे यूज टू रोल ओवर राउंड ट्रंक्स ऑफ ट्रीज, मोस्ट प्रॉबेबली ट्रंक्स ऑफ द पाम ट्रीज। वहाँ पे पाम ट्रीज होते थे तो उन्हीं की ट्रंक्स को वो रोल करके ऐसे सामान को आगे लेके जाते थे। राउंड पीसेस ऑफ वुड लाइक दीज आर कॉल्ड रोलर्स। तो इनके राउंड पीसेस को, वुड को क्या बोलते थे वो लोग? रोलर्स। एंड दे वर वेरी यूजफुल फॉर हेल्पिंग टू मूव हैवी थिंग्स। और ये जो रोलर्स थे, हैवी थिंग्स को अगर उन्होंने मूव करना है तो ये जो रोलर्स हैं बहुत काम आते थे उस वक्त, स्पेशली वेयर द ग्राउंड इज़ हार्ड। और जहाँ पे स्पेशली ग्राउंड बहुत हार्ड होता था, एंड द रोलर्स डू नॉट सिंक इनटू द सॉइल। जो रोलर्स थे हार्ड ग्राउंड पे तो और भी अच्छे चलते थे, क्योंकि जो रोलर्स हैं वो सॉइल में सिंक तो होते नहीं है ना, दबते नहीं हैं, इसलिए ये रोलर्स बहुत काम आते थे। द वर्क इज़ स्लो व्हेन रोलर्स आर यूज्ड, बट एक ड्रॉबैक था कि काम धीरे होता था, क्योंकि रोलर्स इतनी तेज़ काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि हैवी होते थे। उनको पुश करने का भी तो होता था ना, तो पुश करेंगे, धीरे धीरे ही पुश करेंगे ना हैवी चीज़ें, बिकॉज समबडी हैज़ टू पिक अप दोज लेफ्ट बिहाइंड। वर्क इज़ स्लो व्हेन रोलर्स आर यूज्ड, बिकॉज पीछे से जो रोलर्स बच जाते थे उनको उठा के दोबारा यूज़ करना पड़ता और कैरी देम फॉरवर्ड फॉर द फर्दर यूज़। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कैसे करते थे वो लोग? लाइक देखिए मैं बताती हूँ। ये रोलर्स लिए उन्होंने, ठीक है, इसके ऊपर ये रोलर्स लिए और इसके ऊपर वो राउंड पीसीज होते थे वुड के, ठीक है ना। जैसे उन्होंने ऐसे लिया, ऐसे वो रोल करके उसको ऐसे ऐसे, ये इतना चला गया, ठीक है ना, इतना चला गया, अब ये पीछे रह गया ना, तो अब फिर इसको उठा के उनको ऐसे आगे लगाना पड़ता था। फिर उसको इतना आगे लगाया, फिर वो इतने रास्ते पे चले, फिर ये यहाँ तक ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर वो यहाँ पे फिर रोलर को सेट करते थे। तो ऐसे कर करके वो ये ऐसे, समझ आ रहा है ना आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ऐसे वो रोल करते थे धीरे धीरे, तो जितनी उसकी लेंथ होती थी वो उतना आगे जाता था, उसके बाद उसको उठा के फिर उसके नीचे रखना पड़ता था। तो ऑब्वियसली जो काम है वो तो थोड़ा स्लो होगा ही इस हिसाब से। तो इसलिए जो रोलर्स के साथ काम होता था मूविंग हैवी
material, so it was definitely slow.